એટલે આવું બધું છે. આ દિવાળી પહેલા તો સર કોલેજ નહીં જ ખુલે લગભગ. એ સપ્ટેમ્બર સુધી તો નહીં જ ખુલે એવું લાગે છે. સપ્ટેમ્બર પછી ખબર નહીં પાછું. તો દિવાળી ક્યારે છે? અને નવેમ્બરમાં. દિવાળી મને ખ્યાલ નથી, પણ નવેમ્બરમાં છે આ વખતે એવું ગઈ છે. આઈ થિંક નવેમ્બરમાં છે આ વખતે. હા તો નવેમ્બરમાં છે. 4 તારીખ કે 11 તારીખે છે કદાચ. વાત ખાલી તમારા ફ્રેન્ડ લોકોને સમજાવજો. તમે લોકો થોડું લાઇટલી લો છો, બરોબર? હા. તમારી એક્ઝામ થવાની જીટીયુ ની એ વાત તો પાકી છે દર સેમેસ્ટરમાં. કારણ કે તમે અત્યારે જ જોઈ રહ્યા છો કે લાસ્ટ સેમેસ્ટરની એક બી એક્ઝામ આ લોકો છોડવા તૈયાર નથી જીટીયુ વાળા. તો તમારી તો થવાની જ છે, કોઈ ઓપ્શન જ નથી. અને પ્રોજેક્ટની વાત કરું તો પ્રોજેક્ટમાં શું થશે, તમે અત્યારે લાઇટલી લેશો ને તો સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં ખુલી જશે કોલેજ. પછી તો તમારે વર્ક કરવું જ પડશે. અને એમ બી તમારો આ ટાઈમ હોય ને એ પ્રોજેક્ટ શોધવામાં જ જાય, બરોબર? ડિસેમ્બર સુધીનો ટાઈમ. તો એવું એક્સપેક્ટ કરી શકાય કે તમે ડિસેમ્બર સુધી પ્રોજેક્ટ સર્ચ કર્યો, તમને મળી ગયો, એના વિશે બધી માહિતી એકઠી કરી, ને ડિસેમ્બર પછી અમે લોકોએ પ્રોજેક્ટ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યારે તો બધું ખુલી જ જવાનું છે, સમજી લો. મોસ્ટલી હજુ કઈ કહેવાય એવું નથી, બરોબર? પછી શું સિચ્યુએશન આવે ખબર નથી મને પણ એવું કહેવાય છે કે ખુલી જશે. તે ટાઈમે તમારે પછી પ્રોજેક્ટનું કામ બી સ્ટાર્ટ કરવું જ પડવાનું છે. એમાં બી કોઈ ઓપ્શન નથી. તમે એ કામ સ્ટાર્ટ નહીં કરશો તો અમે શું બતાવશું એ લોકોને? કે જીટીયુ વાળા બધા ડેટા માંગે છે, સમજી લો. આજે 6 સેમેસ્ટરે પ્રોજેક્ટ કર્યો ને એની જે આખી રિપોર્ટ ફાઇલ હતી એ માંગી છે. હા, પ્રોજેક્ટ નથી માંગ્યું કે તમે અમને પ્રોજેક્ટ બતાવો તમે શું કર્યું, પણ રિપોર્ટ તો માંગ્યું જ છે, બરોબર? અને આ લોકોએ તો પ્રોજેક્ટ બનાવી દીધો હતો, એટલે વાંધો નહીં. એક મિનિટ. હાલો. કોઈને કઈ શેર કરવું છે? એનોટેશન રિક્વેસ્ટ આવી છે, કોણે કરી? સફવાને કરી. સર ભૂલથી થઈ ગયું સર. અચ્છા. આવી ભૂલ ના સિચ્યુએશન કેટલી ખરાબ છે જો, સિચ્યુએશન કેટલી ખરાબ છે ને એ જુઓ. હું હોમ આઇસોલેશનમાં છું, બરોબર? અત્યારે પપ્પાને પોઝિટિવ હતો, ફાધરને. પછી મમ્મીને પોઝિટિવ આવ્યું. હવે અમે લોકોએ આઇસોલેશનમાં રહેવાનું હોય, ઘરની બહાર નહીં નીકળવાનું. તો મારા ફાધર એસએમસીમાં વર્ક કરે, તો એમને જવું પડે. પાછું કેવું કે બધા હોમ આઇસોલેશનમાં રહી તો ચાલે, પણ એસએમસી વર્કર હોય એને તો જવું જ પડે, કારણ કે એ લોકોને બી છે ને માણસો ખૂટે છે ત્યાં, બરોબર? તો મારા ફાધર આઇસોલેશનમાં હોવા છતાં એમને જોબ જોઈન કરવી પડી. વિચારો તમે કેટલી ખરાબ હાલત છે. તો તમે બી ઘરે જ છો, ક્વોરન્ટાઇન? હા, હું હોમ ક્વોરન્ટાઇન છું. એકચ્યુઅલી ટિફિન આવ્યું હતું. મમ્મી આઇસોલેશનમાં છે, અમે સાંજે થોડું બનાવી દઈએ અને સવારે ટિફિન લઈ લઈએ, એવું. એ લોકો બહાર મૂકીને ચાલ્યા જાય, અંદર તો અવાય નહીં. આખો એરિયા છે ને, મારો આખો એરિયા એ કર્યો છે, સીલ કરી દીધો છે અમારો ઘરનો. તમને બતાવ્યું હશે ને કાલે? બતાવેલું, બરોબર? સર તમારા સોસાયટીમાં બીજા બધાને બી છે? ના, કોઈને નથી. એ તો ફાધર એસએમસી હેલ્થ વર્કર છે ને, એટલે થોડું આવી ગયું. બીજા એક જણને આવ્યો તો સોસાયટીમાં પાછળ. એ તો એમને તો ક્યારનું પતી ગયું.
કઈ નહીં, ચલો આપણે કાલે પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ લેક્ચર. પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આઈસી એન્જિનનું. એની અંદર આપણે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પરફોર્મન્સ પેરામીટર્સ જોયા હતા આ બધા, અને એમાંથી ઇન્ડિકેટેડ પાવર અને બ્રેક પાવર વિશે જોયું. ઇન્ડિકેટેડ પાવર એટલે એવો પાવર કે જે તમારા કમ્બશન ચેમ્બર થાય છે, કમ્બશન ચેમ્બરમાં જ્યારે કમ્બશન થાય છે મતલબ કે ડ્યુરિંગ ધી પાવર સ્ટ્રોક પ્રોડ્યુસ થાય એને કહેવાય ઇન્ડિકેટેડ પાવર. અને જે પાવર તમને ક્રેન્ક શાફ્ટ પર મળે છે આઉટપુટ શાફ્ટ ઉપર એને કહેવાય બ્રેક પાવર. અને during this process there are different losses is going to be occurred due to the friction, okay, in a bearings, in a connecting rod bearings, in a Gudgeon pins. So this frictional losses has been occurred while power is going to be transmitted in between indicator and brake power. Okay, so these losses in terms of power is called as a frictional power. We will see afterwards what is actually a frictional power is. But then after we have seen the effective pressure. इफेक्टिव प्रेशर में हमने क्या देखा था कि जो आप इंडिकेटेड पावर पे प्रोड्यूस, इंडिकेटेड पावर जो प्रोड्यूस होता है वहां पे जो आपका प्रेशर है, एवरेज प्रेशर आप लेते हो, क्योंकि पिस्टन तो है आपका कंटिन्यूसली अप डाउन करता रहता है, isn't it? तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर में भी थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन वो वेरिएशन की वजह से आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू जो है वो मीन लेते हो. मीन मतलब कि एवरेज वैल्यू लेते हो, isn't it? So that is why it is called as a mean effective pressure. और उसका इक्वेशन जो है वो इंडिकेटेड पावर के इक्वेशन से ही आएगा. ओके, તો આ જે ઇક્વેશન હતું નેક્સ્ટ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયેલું એના પરથી જ આવશે. એના પછી આપણે જોયું હતું બ્રેક પાવર. બ્રેક પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 pi nt divided by 60 which is measured at the output shaft, okay, in terms of watt. उसके बाद हमने रोप ब्रेक डायनेमोमीटर देखा था जो हमारे कॉलेज में है, टाटा का इंजन है उसके साथ अटैच्ड है. उसका इक्वेशन देखा था कि ब्रेक पावर जो होता है वो 2 pi nt divided by 60 होता है, और जो उसका टॉर्क होता है वो होता है W माइनस एस. एक मिनट, टू फेल है. और उसका जो फॉर्मूला होता है वो W माइनस एस इंटू डी बाई टू, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस. ओके, तो उसके हिसाब से हमको ये इक्वेशन मिला था दैट ब्रेक पावर फॉर अ रोप ब्रेक डायनेमोमीटर is pi d n W minus s divided by 60 into 1000. When 1000 is there, we have to take a brake power in terms of kilowatt. ये भी मैंने explain किया था, Q किलोवाट आएगा तो 1000 आएगा, isn't it? Fine. इसके ऊपर से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे, तो ये इक्वेशन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना थोड़ा, जिसके पास बुक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उसके बाद प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर. एक प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर कुछ इस तरह से है, एक पुली होगी, ओके, और वो घूमती रहेगी और उसके ऊपर ये आर्म होगा ये, और उसके साथ एक ऐसे वेट अटैच होगा, isn't it? ब्रेक ब्लॉक होता है ना, ब्रेक होता है ना, ऐसा एक सिस्टम है. ओके, तो ये जो पुली है वो घूमती रहेगी और उसके हिसाब से टॉर्क जनरेट होगा. जो पुली है वो क्रैंक के आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होगी, isn't it? और जितना आप वेट उसके ऊपर डालोगे उसके हिसाब से उसको एक पावर मिलेगा जो हमको फाइंड करना है, जिसको हम ब्रेक पावर बोलेंगे. ओके, तो ये हो गया प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर के बारे में. तो उसका इक्वेशन देखते हैं. हमको अल्टीमेटली ब्रेक पावर जो है वो इसका प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर का फाइंड करना है, जो 2 pi nt डिवाइडेड बाय 60 into 1000 किलोवाट आता है. ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा. उसका टॉर्क जो है वो क्या आता है, F इंटू आर. ओके, तो ये टॉर्क जो है वो F इंटू आर आता है. उसके बाद उसका वर्क, वर्क कितना आएगा, कोई भी वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. यहाँ पे फोर्स कितना है, F, और एक रिवॉल्यूशन में कितना वर्क होगा ये देखना है हमको, isn't it? मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ, एक मिनट, इसका मीनिंग ये हुआ कि
जब ये आपकी पुली है, मतलब कि पुली मीन्स क्रैंकशाफ्ट, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट जो है वो पुली के साथ अटैच है, isn't it? तो क्रैंकशाफ्ट या फिर पुली पूरा एक रोटेशन घूमेगी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन खत्म करेगी, isn't it? तब उसमें कितना वर्क होगा? तो फोर्स आप दे रहे हो F उसके ऊपर, और उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना ट्रैवल करता है यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक, तो उसको क्या होगा कि पुली का पेरीमीटर आएगा, और ये पेरीमीटर कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होता है 2πr, को पता होगा, परिमिति गुजराती में એને परिमिति કહેવાય, बरोबर। उसके हिसाब से आपका वर्क आएगा फोर्स इंटू 2πr, isn't it? तो अभी जो आपका वर्क बना, ये क्या बना, 2πr इंटू एफ, उसके अंदर r इंटू एफ जो है वो क्या है, आपका टॉर्क है, isn't it? समझ रहे हो, वो आपका टॉर्क है, that is why they have written the f into r as t, clear? So ultimately work is equal to 2π into t, isn't it? फिर आते हैं पावर के ऊपर, अगेन पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो क्या है, इक्वेशन 2π nt डिवाइडेड बाय 60, ओके। तो t की जगह में हमको क्या रखना है, f इंटू आर लिखना है, तो उससे फॉर्मूला आपका आएगा ये वाला 2π FR इंटू एन, तो है ही यहाँ पे, isn't it? समझ में आ रहा है कि फिर से समझाऊं, बोलो। तो फरीदी समझाओ ना एक बार। परिस्थिति समझाऊं? हाँ एक बार। अच्छा, work is equal to force into distance, isn't it? Force is F and distance is your 2πr, because वो एक रिवॉल्यूशन घूम रहा है वो पूरा, तो उसकी वजह से उसका पेरीमीटर जो है वो आएगा, परिमिति आएगा। तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वर्क है 2π इंटू एफ आर होगा, isn't it? जो यहाँ पे है मेरा, और टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर है, तो मैं एफ आर की जगह पे टॉर्क लिख सकता हूँ टी, ये फॉर्मूला से, तो एफ आर की जगह पे मैंने टी लिख दिया, isn't it? अभी यस पावर इज इक्वल टू 2π nt डिवाइडेड बाय 60 है हमारा, वॉट के टर्म में बोल रहा हूं मैं, और ये जो 2π nt है उसमें t की जगह पे मैं फिर से एफ आर लिख सकता हूँ, ओके। तो इसकी वजह से आपका ये फॉर्मूला आया है दैट p इज इक्वल टू 2π इंटू n इंटू एफ आर, ओके, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000। ये 60 कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बताया था, और 1000 कहाँ से आया ये भी मैंने आपको, ओके। 60 जो है वो आरपीएम की वजह से आता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो यूनिट है मेरा वो वॉट के टर्म में है, एंड वॉट इज जूल पर सेकंड, समझ रहे हो? यस तो यहाँ पे मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये मेरा 60 आ रहा है, ओके। और 1000 किलो वॉट की वजह से आ रहा है, आप यहाँ पे वॉट में देखोगे ध्यान से तो उसमें 1000 नहीं आएगा, समझे? ये देखो यहाँ पे जब यूनिट वॉट में है तो यहाँ पे नीचे 1000 नहीं आएगा मेरा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दे। नाउ द मैकेनिकल एफिशिएंसी, देखो यहाँ पे हमको दो एफिशिएंसी के बारे में मोस्टली बात करनी है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज थर्मल एफिशिएंसी, और तीसरी भी एक आएगी जिसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, isn't it? तो पहले हम मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि जब आपको, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवाज अपना ऑडियो म्यूट कर दो भाई, ऑडियो म्यूट कर दो। एफिशिएंसी क्या होता है आपको पता है, किसी भी चीज का एफिशिएंसी मींस आपको जहां पे पावर चाहिए, isn't it? आपको जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो आपका हो गया ऊपर, मतलब जो सपोज आपको एफिशिएंसी फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, isn't it? आउटपुट अपॉन इनपुट ऐसे करते हैं। तो आपका इंजन में आउटपुट क्या मिल रहा है कि जो आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है जितने भी पावर से, तो उसको बोलते हैं ब्रेक पावर, वो हो गया आपका आउटपुट। और वो आउटपुट लाने के लिए आप इनपुट क्या दे रहे हो, तो यहाँ से आप जो फ्यूल दे रहे हो
जनरेट, उससे कंबशन हो रहा है, वो आपका इनपुट है। मतलब इंडिकेटेड पावर जो है वो आपका इनपुट हो गया, समझ रहे हो? इंडिकेटेड पावर जो है वो आपका इनपुट हो गया, और क्रैंक का जो रोटेशन आ रहा है क्रैंकशाफ्ट का, वो आपका आउटपुट हो गया। So ultimately efficiency is equal to brake power, which is produced as the output, divided by indicated power, which is your input, isn't it? ये हो गया आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप सीधा इक्वेशन देखोगे तो पता चलेगा आपको, दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इज ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्रेक पावर અને इंडिकेटेड पावर ના ગુણોત્તર है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये भाई बरोबर। So the difference between IP and BP is the indication of power lost in the mechanical components of the engine due to friction. Okay, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला ना, इंडिकेटेड पावर में आप एनर्जी देते हो और ब्रेक पावर में आपकी एनर्जी जो है वो आउटपुट में मिलती है, लेकिन वो दोनों के बीच में कुछ लॉसेस होते हैं, which are called as a frictional losses or frictional power. Okay, so kind of losses we have to see here. So the first one is friction losses इन दी पिस्टन्स। पिस्टन में लॉसेस होंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे पिस्टन आपका सिलेंडर में रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक तो रेसिप्रोकेशन की वजह से लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन, क्योंकि वो उसकी सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आएगी। उसके बाद डिफरेंट बैरिंग्स जो होगी वहां पे लॉसेस होंगे, गियर्स में लॉसेस होंगे जहां पे आपका गियर बॉक्स होगा, फिर वाल्व मैकेनिज्म जो है वहां पे भी लॉसेस होंगे, क्योंकि वाल्व भी आपका अप डाउन होता है सिलेंडर हेड में, राइट? सो ये लॉसेस जो है वो आपका सीधा इंजन के लॉसेस है, जो 7 to 9% ऑफ इंडिकेटेड पावर रहता है। मतलब कि सपोज आपको 100% इंडिकेटेड पावर एज एन इनपुट मिल रहा है, जनरेट, तो उसमें से 7 to 9% किस में जा रहा है? ये सब लॉसेस में जा रहा है। ओके, सेकंड क्या है? पावर इज एब्सॉर्ब बाय द ऑक्सिलरीज लाइक द फ्यूल पंप। देखो हमने पिछली थ्योरीज में देखा था कि जो भी क्रैंकशाफ्ट में पावर प्रोड्यूस होता है वो हम कहाँ कहाँ पे भेजते हैं। सपोज हमने रेडिएटर वाला कूलिंग सिस्टम देखा था, या फिर हमने लुब्रिकेशन सिस्टम देखा था, या फिर हमने वाल्व मैकेनिज्म वाला सिस्टम देखा था, जिसमें क्रैंकशाफ्ट से पावर एक मैकेनिज्म के थ्रू, चेन मैकेनिज्म के थ्रू होते हुए कैमशाफ्ट में जाता है, isn't it? और वो कैमशाफ्ट कैम के थ्रू वाल्व को पावर ट्रांसमिट करता है अल्टीमेटली। तो ये सब क्या करता है कि क्रैंक का जो आउटपुट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी हमको फ्यूल है तो उसका पंप जो है वो भी चलाना होगा, बैटरी को रन करना होगा, तो ये सब जो पावर है वो कहाँ से मिलेगा? वो पावर हमको मिलेगा क्रैंकशाफ्ट से, मतलब कि आउटपुट शाफ्ट। वो पावर हो जाता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इंडिकेटेड पावर का 3 to 8% जो है वो उसमें ले रहा है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। तो यस ऐसे ही सर। फ्लाईव्हील में, ओके, तो ऐसे ही फ्लाईव्हील में लॉस होगा, और उसी तरह सिलेंडर में जो चार्जिंग, मतलब कि जो आपका फ्रेश चार्ज आएगा, या मतलब कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा, उसको भी इन करना पड़ेगा थ्रू दी फ्यूल टैंक और दी इंजेक्टर, उसमें लॉस होगा, और एग्जॉस्ट गैसेस का भी लॉस होगा। वो होता है 2 to 6% ऑफ द इंडिकेटेड पावर अराउंड। ओके, फ्लाईव्हील वाला जो लॉस होता है वो होता है अराउंड 4% ऑफ द इंडिकेटेड। So due to this kind of losses, the brake power produces somewhat lower than the indicated power. That is why the mechanical efficiency is coming into the picture, which is a ratio of brake power divided by indicated power. Okay. तो अभी यहाँ पे देखो, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर को मैं एक इक्वेशन के टर्म में लिखूं, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। फ्रिक्शनल पावर उसमें ऐड हो जाएगा, isn't it? So ultimately indicated power is equal to brake power plus friction power. समझ में आ रहा है इसको? इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, isn't it? ये 100% था, ये 100% था मेरा। उसके बाद मुझे सपोज 50% यहाँ पे मिला ब्रेक पावर, तो बाकी का कहाँ पे गया? फ्रिक्शन में गया। तो बाकी का जो 50% है वो फ्रिक्शन में गया, isn't it? So ultimately
जो हमारा आईसी इंजन होता है उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी अराउंड 25 to 30% होती है मैक्स, isn't it? आपने वो थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर डिफरेंट साइकिल देखी थी, isn't it? No doubt there are some thermal cycles has been there, but उसमें आपको बताया गया था कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली होती है, isn't it? यहाँ पे मैंने नोट में भी लिखा है, देखो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन्स varies from 65, okay, 65 to 85%. okay, मैकेनिकल एफिशिएंसी एक्चुअली ज्यादा होती है कंपेयर टू थर्मल एफिशिएंसी. आई हैव बीन टॉक्ड अबाउट द थर्मल एफिशिएंसी, उसकी 30-40% मैक्सिमम है. ओके, तो ये बात हुई मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में. यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ूं कि कुछ है? ओके, सब वन का क्लियर. ओके, उसके बाद ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर. अभी आपको ये पता है दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी इज अ ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. मतलब ब्रेक पावर को मैं बीपी लिखूंगा और इंडिकेटेड पावर को आईपी लिखूंगा और आईपी को बीपी प्लस एफपी लिखूंगा, isn't it? So ultimately mechanical efficiency is equal to brake power divided by indicated power. तो ये मैंने यहाँ पे लिया है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट पावर वी हैव assumed the pressure. ओके, तो ब्रेक पावर के अकॉर्डिंगली उसका प्रेशर होता है, तो हम उस पे ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन इफेक्टिव प्रेशर एट दी ब्रेक पावर एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर दी इंडिकेटेड पावर. ओके, ये प्रेशर के टर्म में मेरा एक इक्वेशन बन गया, isn't it? So ultimately मैकेनिकल एफिशिएंसी को प्रेशर के टर्म में लिखना हो ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद आईपी जो आएगा मेरा वो कितना आएगा, पी ऑफ एम. देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटेड पावर जो आएगा मेरा वो इंडिकेटेड पावर के प्रेशर के अकॉर्डिंगली होगा, और उसका इक्वेशन तो बोला ही था मैंने, आईपी इज इक्वल टू प्लांट डिवाइडेड बाय 60, isn't it? ओके, तो एक मिनट आपको अच्छे से समझाता हूँ. यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इंडिकेटेड पावर जो है विच इज इक्वल टू इंडिकेटेड मीन प्रेशर इंटू LAN डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000 किलोवाट पर सिलेंडर. अगर के होता तो सिलेंडर वाला नहीं होता, ओके, नंबर ऑफ सिलेंडर के लिए. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे मेरा जो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन है वो मुझे मैकेनिकल एफिशिएंसी के टर्म में लाना है, isn't it? तो मैं अभी क्या करूंगा उसके लिए कि जो PMI है उसकी जगह पे मैं ये वाला लाऊंगा. तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन से वो सॉल्व करूंगा. ओके, और आपको ये वाला इक्वेशन पता है, तो PMI जो है उसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है उसको मैं यहाँ से लेके नीचे लाऊंगा तो वो नीचे आएगा, isn't it? So ultimately PMI is equal to PMB तो रहेगा ही ऊपर डिवाइडेड बाय जो मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, समझ रहे हो, छेद में चला जाएगा और पीएमबी न्यूमिनेटर में रहेगा ही रहेगा. तो ये हो गया पीएमआई का इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे रख दिया. देखो पीएमआई जो था यहाँ पे उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये वाला पीएमआई इज इक्वल टू पीएमबी डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो वो मैंने रख दिया यहाँ पे. इसकी जगह पे रखा वो मैंने इसकी जगह. समझ आ रहा है? देख लो आराम से. ओके, फिर मैंने क्या किया इसके बाद, यहां तक क्लियर हुआ तो मैं आगे जाता हूं. फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है उसको मैं इस साइड ले गया फिर से.
इंडिकेटेड पावर के इक्वेशन में। ओके, तो ये आ गया मेरा नेक्स्ट स्टेप, इंडिकेटेड पावर इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस PMB LAN, ये तो है ही इसका, उसको सेम लिख देना है, डिवाइडेड बाय दिस। अभी IP इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, वो होता है आपका VP। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी का अगेन इक्वेशन था जो हमने पीछे देखा, विच इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ओके, हाँ सर। इंडिकेटेड पावर को मैं इस साइड ले गया, सो अल्टीमेटली ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये रहा वो इक्वेशन। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, हेलो सर। हाँ बोलो है। સર જો 4 સિલિન્ડર માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો ફોર્મ્યુલા આ જ આવશે? 4 સિલિન્ડર માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ને તો તમારો જે ફોર્મ્યુલા થશે એમાં શું ચેન્જ આવશે હું તમને કહું। અહીંયા એક મિનિટ, આ જે છે પર સિલિન્ડર છે, ઓકે, પણ જો આપણી પાસે નંબર ઓફ સિલિન્ડર માટે એડ કરવાનું હોય તો આ જે છે એ કાઢી નાખવાનું અને અહીંયા કે એડ કરવાનું, કે ફોર નંબર ઓફ સિલિન્ડર। ઓકે, હા હવે સર, કે ધારો કે 1000 મેં કીધું શું 1000 થી એ બી ચેન્જ થાય ને સર, જો નંબર ઓફ સિલિન્ડર વધી જાય તો? 1000 કેમ? 1000 તો કિલોવોટ માટે છે ને। તારે ખાલી શું કરવાનું, ધારો કે તારા 4 સિલિન્ડર છે તો કે ની જગ્યાએ વેલ્યુ 4 મૂકી દેવાની, બરોબર। 8 સિલિન્ડર હોય તો 8 મૂકી દેવાની, ધેટ્સ ઇટ। આ 1000 જે છે એ તો ખાલી કિલોવોટ અને વોટ પર ડિપેન્ડ કરે છે। તમને વોટમાં પૂછ્યું હોય તો 1000 નહીં લખવાનું અને કિલોવોટમાં પૂછ્યું હોય તો 1000 લખવાનું। લખવાનું। ક્લિયર? હા તમને પીપીટી બધી સેન્ડ કરી દો ને એટલે આઈડિયા આવી જશે। હા હા। ઓકે, તમારી બુકમાં પણ છે, તમે લોકોએ બુક લીધી છે કોલેજમાંથી કે નથી લીધી હજુ પણ? ના સર, નથી લીધી। હે પ્રભુ। કઈ નહીં, ચલો હું તમને આ પીપીટી જેટલી બની છે ને એટલી હું મૂકી દઉં। થોડુંક 3 ટોપિક બાકી છે પીપીટીમાં મૂકવાના, એટલે હું તમને સેન્ડ નથી કરતો, પણ હું તમને આજે સેન્ડ કરી દઉં, બરોબર। એકવાર મેં પહેલા જો આવી, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે કર્યું હતું આ એ જ હતું, બરોબર। આવ્યું, આમાં મેં આખું તમને ડિટેલમાં સમજાવ્યું હતું કે પ્લાન વોટ માટે આ, કિલોવોટ માટે 1000 જે છે મલ્ટીપ્લાય ને ડિવિઝન કરતા એટલે કિલોવોટમાં આવતું, બરોબર। અને આ જે હતું એ સિંગલ સિલિન્ડર માટે હતું, અને મલ્ટી સિલિન્ડર માટે અહીંયા કે એડ થતું હતું। જુઓ, આ ઇક્વેશનમાં કે નથી કશે, બરોબર। અહીંયા કે તમારું એડ થતું હતું, કેમ? કારણ કે એ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન માટે છે। તો આ પીપીટી થોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો। તમારી બુકમાંથી અને રેફરન્સ બુકમાંથી જ લીધી છે મેં, આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમે। લીધો સ્ક્રીનશોટ બધાએ? હા લઈ કારણ કે લીધું। ન્યુમેરિકલ ગણશું ને તેમાં આ જ ઇક્વેશન બધા આવશે, બરોબર। અત્યારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, ચલો। પછી એક આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બ્રેક પાવરનો, રો બ્રેક ડાયનેમોમીટર માટે। ચલો, આ બી લઈ લીધો, બરોબર। આગળ વધો। પછી આ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, આ પ્રોની બ્રેક ડાયનેમોમીટર માટે છે। ચલો, ઓડિયો મ્યુટ કરી દો, ઓડિયો મ્યુટ કરી દે દુર્ગેશ। ચલો, લઈ લીધો। પછી મેકેનિકલ એફિશિયન્સી નો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। એક મિનિટ, તમે આ જ લઈ લો ને, ખાલી આઈડવા લઈ લો। ચલો, તમને સિમ્બોલ તો ખબર પડી જ ગયા છે, મેકેનિકલ એફિશિયન્સી, પીઆઈપી શું છે, કે પીએમઆઈ શું છે અને પીએમબી શું છે। પીએમઆઈ એટલે ઇન્ડિકેટેડ બ્રેક ઇન્ડિકેટેડ મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર, અને પીએમબી એટલે બ્રેક મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર, બરોબર। એટલે આ વસ્તુ અહીંયા નોટિસ કરવા જેવી છે કે જ્યારે ઇન્ડિકેટેડ પાવર હશે તો એનું પ્રેશર આવશે, અને જ્યારે બ્રેક પાવર હશે ત્યારે બ્રેક મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર આવશે, બરોબર। તો રકમમાં તમને શું આપ્યું છે એ ધ્યાનથી જોવાનું। તમને એવું પૂછ્યું હોય કે બ્રેક પાવર શોધવાનો છે અને તમને આપ્યું હોય ઇન્ડિકેટેડ મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર, તમારે શું કરવું પડશે? તમને મેકેનિકલ એફિશિયન્સી આપી હશે, બરોબર, એના પરથી તમારે આ જે ઇક્વેશન છે એની અંદર મેકેનિકલ એફિશિયન્સી આપી છે,
અને ઇન્ડિકેટેડ મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર આપ્યું છે, તો એના પરથી બ્રેક મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર શોધવાનું અને પછી એને આની અંદર મૂકવાનું. બરોબર, સમજો છો? તો આ ઇક્વેશન જે છે એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ક્લિયર? લઈ લીધો? સમજાઈ ગયું? હા. ઓકે ઓકે. તો આ જે ઇક્વેશન છે બધા પર સિલિન્ડર માટે છે, હું તમને કહી દઉં છું. બરોબર, જ્યારે પણ તમારે નંબર ઓફ સિલિન્ડર આવશે ત્યારે કે જે છે એ મલ્ટીપ્લાય થશે. બરોબર, એક મિનિટ, અહીંયા એક થોડી એક નાની મિસ્ટેક થઈ છે મારાથી. મિસ્ટેક ઇન ધ સેન્સ કે ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, એ હું સુધારી દઉં છું. પેલો સ્ક્રીનશોટ કાઢી નાખજો, આ લઈ લેજો. એક મિનિટ. હવે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો, સબસ્ક્રિપ્ટમાં ચાલ્યું ગયું હતું બધું સારું. ઓકે, આગળ વધીએ. મોર્સ ટેસ્ટ. જો આઈસી એન્જિનના પરફોર્મન્સ ટેસ્ટિંગ માટે જો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ ટેસ્ટ હોય તો એ મોર્સ ટેસ્ટ છે. અને જ્યારે તમારા એક કરતા વધારે સિલિન્ડર હોય, મતલબ કે મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન હોય, ત્યારે મોસ્ટલી આ ટેસ્ટ થતો હોય છે. બરોબર, સો અલ્ટિમેટલી ધ મોસ્ટ ટેસ્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓનલી ટુ ધી મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન. સિંગલ સિલિન્ડર એન્જિન માટે આ ટેસ્ટ નથી થતો. બરોબર, તો મોર્સ ટેસ્ટમાં શું કરવામાં આવે છે? તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું છે? મોર્સ ટેસ્ટ શું છે? કોઈએ સાંભળ્યું છે કેવી રીતના આનો ટેસ્ટ થાય છે? ના હા સર. સર. ઓકે, તો આપણે જોઈએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસીજર શું છે. બરોબર, સૌથી પહેલા એન્જિન જે છે એને એક રિક્વાયર્ડ સ્પીડ પર રોટેટ, મતલબ એક રિક્વાયર્ડ સ્પીડ પર એને ચલાવવામાં આવે છે. બરોબર, એક પર્ટિક્યુલર हेलो सर, क्या है सर? हेलो. सर कहीं कहीं चाइल्ड गया यार. हम्म. आज छठे सेमेस्टर वालों की एग्जाम है. हाँ एग्जाम है. कौन सी होगी? मेन एग्जाम है कि लास्ट? वो रेगुलर. ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ. કોલેજ પરથી ફોન હતો. તો મોર્સ ટેસ્ટની અંદર એક રિક્વાયર્ડ સ્પીડ જે છે એના પર એન્જિનને રન કરાવવામાં આવે છે. બરોબર, અને એના પરથી એનો જે ફાઇનલ આઉટપુટ મળે છે, ધારો કે 4 સિલિન્ડર છે, ચાર સિલિન્ડર જે છે એને રિક્વાયર્ડ સ્પીડ પર રન કરાવવામાં આવે અને એનો જે આઉટપુટ જે છે એક વખત ફાઇન્ડ કરી દેવામાં આવે છે. બરોબર, પછી શું કરવાનું કે કોઈ બી એક સિલિન્ડર જે છે એને કટ ઓફ કરી દેવાનું. હવે એક સિલિન્ડરને કટ ઓફ કેવી રીતના કરશો કે એનો જે સ્પાર્ક પ્લગ છે ઇન કેસ ઓફ પેટ્રોલ એન્જિન, અને ઇન કેસ ઓફ ડીઝલ એન્જિન એનું જે ઇન્જેક્ટર હોય એને ડિસ્કનેક્ટ કરી દેવાનું. એટલે ત્યાંથી ફ્યુઅલ જશે જ નહીં, એટલે એન્જિન કટ ઓફ થઈ ગયું. બરોબર, પણ બાકીના 3 સિલિન્ડરના લીધે શું થશે કે એ એન્જિનનું રોટેશન તો ચાલુ જ રહેશે. સમજો છો? એ જે સિલિન્ડર છે એનું રોટેશન ચાલુ રહેશે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ કન્ડિશન we can say that all other cylinders motor this cut out cylinder. એનો મતલબ શું થયો કે બીજા 3 સિલિન્ડર જે છે એ આ સિલિન્ડર જે કટ આઉટ થયું એને તો ચાલુ જ રાખશે. બરોબર, તો અલ્ટિમેટલી જે તમને ફ્રિક્શન લોસીસ મળશે
એ તો સેમ જ થવાના, કારણ કે તમારું સિલિન્ડર ચાલુ છે એટલે બાકીના જે લોસીસ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ રહેવાના, બરોબર, ચારે ચાર સિલિન્ડરના મળીને આવવાના, isn't it? So the output is measured. Look, first point has been clear कि engine is first run at the required speed and output is measured. उसके बाद एक सिलेंडर को कट ऑफ कर दिया, देन उसका अदर सिलेंडर जो है वो क्या करेगा, उस कट आउट सिलेंडर को तो पावर देगा ही देगा, उसके बाद जो आउटपुट है इट इज गोइंग टू बी मेजर्ड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। अभी वही स्पीड चाहिए मुझे, मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड थी, सपोज उसकी 1200 आरपीएम स्पीड थी मेरी, बरोबर, तो वही स्पीड कांस्टेंट रख के मुझे आउटपुट मेजर करना है। उससे क्या होगा कि ये जो 3 सिलेंडर है जो चल रहे हैं उसके ऊपर का लोड बढ़ेगा और पावर जो है वो चेंज होगा, isn't it? उसके बाद मुझे क्या करना है, द डिफरेंस इन द आउटपुट इज अ मेजर ऑफ इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ द कट आउट सिलेंडर। ओके, अभी पहले सपोज क्या था कि वो चारों का चालू था, फिर एक सिलेंडर, हाँ तो ऑडियो म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो, किसका ऑडियो चालू है? जब चारों सिलेंडर चालू थे तब हमने आउटपुट पावर मेजर किया, फिर एक को कट किया, फिर पावर मेजर किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि द डिफरेंस इन द आउटपुट्स जो होगा, मतलब आउटपुट पे डिफरेंट आएगा, उसकी वजह से जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है वो कट आउट सिलेंडर का मुझे मिलेगा, वो मुझे मेजर करना पड़ेगा, isn't it? उसके लिए इक्वेशन आएगा, वो हम देखेंगे। दस फॉर द इच सिलेंडर आईपी इज ऑप्टिंग, सबके लिए इंडिकेटेड पावर जो है वो मुझे मिल जाएगा, ओके, एंड इज एडेड टुगेदर टू फाइंड द टोटल आईपी ऑफ द इंजन। अभी मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक सिलेंडर के लिए किया, अभी मैं दूसरे सिलेंडर को कट आउट करूंगा और बाकी के जो 3 है उसके इंडिकेटेड पावर मेजर करूंगा, फिर तीसरे सिलेंडर को कट आउट करूंगा और बाकी के 3 सिलेंडर जो है उसको चालू करके उसके पावर मेजर करूंगा, isn't it? तीसरे का, फिर चौथे सिलेंडर को मैं कट आउट करूंगा, isn't it? उस तरह से मैं चारों सिलेंडर के कट आउट जो करूंगा उसके इंडिकेटेड पावर मेजर करूंगा और अल्टीमेटली मुझे चारों का टोटल इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा एट दिस सेम बाय कीपिंग दी स्पीड एज अ कांस्टेंट। ओके, अभी मैं स्पीड कांस्टेंट रखता हूं तो क्या होगा कि जो बाकी के 3 सिलेंडर है उस पे लोड बढ़ेगा, isn't it? वो थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले जब नॉर्मल कंडीशन थी जहां पे चारों इंजन चालू थे तो टोटल I इज इक्वल टू टोटल B प्लस टोटल F आएगा। ये इक्वेशन मैंने कहां से लिया, दैट IP इज इक्वल टू योर BP प्लस FP। ओके, तो 4 सिलेंडर है उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 4 वाला लिखा। ओके, उसके बाद ये जो B1 है उसको, ओके तो एक मिनट, तो उससे मेरा ये इक्वेशन बनेगा 4 सिलेंडर के लिए, चार सिलेंडर जो है उसके लिए, उसके हिसाब से मेरा ये इक्वेशन बनेगा दैट I जो है वो I1 I2 I3 I4 होगा, इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिलेंडर 1 को कट ऑफ कर रहा हूं। ओके, तो उसके लिए जो उसका ब्रेक पावर आ रहा है उसको मैं बोलता हूं B1, isn't it? B2 क्या है अभी, B2 is the brake power of the engine when cylinder 2 is cut off. B3 is the brake power of engine when cylinder 3 is cut off and B4 is the brake power of engine when cylinder 4 is cut off. Clear? Then टोटल B क्या होगा मेरा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये स्टेप के अंदर, ये स्टेप के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो था उसको यहीं पे रखा और F जो था जितना उसको मैं लेफ्ट साइड ले गया, isn't it? So I1 plus I2 plus I3 plus I4 माइनस, ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड जाएगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये मेरा ये स्टेप आ गया, isn't it? अभी P1 के लिए क्या आएगा यहाँ पे कि जब पावर 1 कट ऑफ है, मतलब कि जब सिलेंडर 1 जो है वो कट ऑफ है, उसका ब्रेक पावर तो मिलने ही वाला है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
मेरा जो सिलेंडर 1 है वो कट ऑफ है, तब भी उसका ब्रेक पावर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि बाकी के 3 सिलेंडर चालू है और वो 3 सिलेंडर एट अ कांस्टेंट स्पीड पहले सिलेंडर को तो रन कर ही रहे, इजंट इट? तो उसकी वजह से पहले सिलेंडर का ब्रेक पावर मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? क्योंकि हम फर्स्ट सिलेंडर को कट ऑफ कर रहे हैं, उसका इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा? 0। कट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि इंडिकेटेड पावर 0, समझ रहे हो? क्योंकि हम कुछ इनपुट एनर्जी नहीं दे रहे, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से इंडिकेटेड जो है I1 मेरा 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। I1 0 हो जाएगा। तो जब मैं पहले सिलेंडर का ब्रेक पावर फाइंड करूंगा, तब तब मेरा पहले सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर जो है वो 0 हो जाएगा, isn't it? So break power of 1 when cylinder 1 is cut off is equal to ये I2 plus I3 plus I4 minus F1 plus F2 plus F3 plus F4। अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि F1 क्यों कैंसिल नहीं हुआ? तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि F1 इसीलिए कैंसिल नहीं होता क्योंकि वो 3 सिलेंडर जो है वो आईसी इंजन के फर्स्ट सिलेंडर को तो पावर देते ही है, तो उसमें तो फ्रिक्शन लॉसेस होने ही होने हैं, isn't it? तो उसकी वजह से फर्स्ट का फ्रिक्शन तो आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सबको यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, चलो आशीष को क्लियर हुआ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी सबको भी ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी 1-2-3 मिनट में मे भी लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो जितना होता है उतना हम करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मैं इसको इस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया कि दोनों साइड I1 रख दिया, isn't it? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी देखो, ये स्टेप था, उसके बाद मैंने इक्वेशन के दोनों साइड, इक्वेशन के इक्वल के दोनों साइड I1 जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ओके, उससे क्या होगा कि मुझे I1 प्लस B1 जो है वो लेफ्ट साइड में मिलेगा, और यहाँ पे टोटल पावर वाला इक्वेशन मिलेगा, टोटल ब्रेक पावर का, जो मेरा आएगा बी, ये वाला, isn't it? इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल बी होगी, समझ रहे हो? इसकी वजह से मैंने ये किया, isn't it? उसके बाद B1 जो है वो मैंने इस साइड ले लिया, तो B माइनस B1 इज इक्वल टू I1 आएगा। ओके, उसी तरह B माइनस B2 इज इक्वल टू I2 आएगा, B माइनस B3 इज इक्वल टू I3 और B माइनस B4 इज इक्वल टू I4। ओके, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो